मैं कहता हूँ कि सिर्फ लीड कोड के 150 क्वेश्चन करो या ड्राइवर की शीट और ये सब शीट्स है, ये शीट्स करो और इतनी डेप्थ में करो ना, अंडरस्टैंड ईच पॉइंट ऑफ देम। ऑनेस्टली डीएसए इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है ना। प्लीज, अब प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ना एक चीज अलग करना कि मेक अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, इट रियली स्टैंड्स आउट। कोई इंटरव्यू दे रहा होता है ना, 50 लोगों ने सेम चीज लिखी होती है, मशीन लर्निंग स्टॉक प्राइस प्रेडिक्टर प्रोजेक्ट बना रखा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है, सबने कर रखा होता है। मेक समथिंग डिफरेंट दैट इज फॉर योर ओन। Hi everyone. So today we have someone very special on the channel. We have Bhavya. So I messaged Bhavya on LinkedIn quite a while back, and at that time he had cracked coordination, but unfortunately he had gotten his offer revoked because of the recession time. But even then, he had cracked a lot of good companies in this time period of recession. He has cracked product-based companies, high-paying companies. So we'll be hearing from him, his strategy, his journey, everything. So Bhavya, welcome to the channel. Hello. So guys, I'm Bhavya Khandelwal. I'm a 2023 graduate from Thapa University, Patiala. So I did my BTech in computer science, and since early childhood, I was really into STEM, science, technology, engineering, mathematics. So recently, like currently, I'm a SGE1 at Flipkart. Before that, I had worked with Goldman Sachs as an intern, and like I've cracked a few offers. I got coordination, sadly it got revoked, and got cleared all interviews for Zomato and some few other companies as well. So here's about my journey. अब मैं बताऊंगा कि मतलब what was my preparation strategy, मैंने क्या क्या चीज़ें करी, and what can you guys do which can help you all. तो लाइक यू गाइस सो भाई ने काफ़ी सारी कंपनीज फोड़ रखी है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो भव्य, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस क्रैकिंग ऑल दीज कंपनीज एंड व्हाट वाज द टफेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस यू फेस, व्हाट वाज द टफेस्ट कंपनी दैट यू फेस? So I'll come to the second part of the question. Main है, so obviously toughest was coordination, trilogy innovation. उसका कंपैरिजन नहीं है. So but I'll tell you my journey interviews की और ये सब कैसे रहा शुरू से. So in my third year I think मैंने पहला interviews दिए थे अपने. It was Texas Instruments. So I gave my interviews at Texas Instruments 2 साल के बाद. I don't remember क्या क्या पूछा था, but it was mostly based around development and computer science basics, databases, object oriented, and some basic recursion वाले question. I think Fibonacci or something. So this was Texas Instruments. I got in Texas Instruments as an intern. But फिर भी लालच था थोड़ा, तो गोल्डमैन सैक्स का फिर आई गेव इंटरव्यूज, आई गेव द टेस्ट. तो फर्स्ट राउंड इज एप्टीट्यूड, यू कैन लाइक first one is aptitude test, cleared that, then coding round, and then there were I think 3 round of interviews for me. The level of questions I would say were medium hard. ठीक है, आई थिंक एक हार्ड क्वेश्चन था लास्ट राउंड में मैनेजर ने जो पूछा था. बाकी दो मतलब मीडियम हार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ज़्यादा मतलब कुछ नहीं था, डुएबल थे काफ़ी. एंड उसके बाद दिस वाज जीएस, इंटर्न एट जीएस, गॉट अ फुल टाइम ऑफर. अगेन मन नहीं मानता, लालच थोड़ा. So I gave ZeoTap. I applied for ZeoTap, and ZeoTap gives a 6 month intern. I gave ZeoTap interviews. The questions were hard actually, and like the ZeoTap is a really good company. So ZeoTap के questions का भी like we can discuss someday. Yeah. So gave the interview, like joined as an intern for a few weeks, but again priorities didn't match, so छोड़ दी थी. उसके बाद मेन लाइमलाइट पे आते हैं द कोऑर्डिनेशन. सो अगेन द टफेस्ट इंटरव्यू आई वुड से. सो कोऑर्डिनेशन का इलैबोरेट अच्छे से. तो पहला राउंड इज द टेस्ट. सो आई हैव गिवन कोऑर्डिनेशन के टेस्ट बिफोर. सो आई थिंक कोडेगन होता है. सो कोडेगन में मैंने पहले 3.5 क्वेश्चन कर रखे थे, तब मेरे को इंटरव्यूज नहीं आते. एंड पीपल हु डिड 4 आई थिंक दे गॉट इंटरव्यूज. दिस टाइम इट वाज काइंड ऑफ पूल हायरिंग, जिसमें काफ़ी कॉलेजेस के एक साथ टेस्ट हुए थे. स्पेशली मेरे केस में नॉर्थ के काफ़ी कॉलेजेस के एक साथ टेस्ट हुए थे. सो क्वेश्चंस वर सरप्राइजिंगली नॉट वेरी वेरी हार्ड. ठीक है, आई थिंक इस साल वो ज़्यादा हायरिंग कर रहे थे. Last year it was more difficult Yeah, comparatively. yeah, exactly. Last year it was more difficult. They were hiring much more this year. फिर भी लिया नहीं इन्होंने. But हाँ, anyway, so they were hiring much more. तो questions were, I would say, hard. Lead code hard, definitely. एक question lead code hard से भी मुश्किल था. But again, उसकी time complexity हमें n square log n लगी, n square लगी. But वो Ncube में भी submit हो गया. That worked out for me. I did all the 4 questions. उसके बाद second part was, so coordination का in particular has a very बड़ा प्रोसेस. सो सेकंड वाज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि जिन्होंने चीटिंग करी उनको हटा दो. एंड दैट एप्टीट्यूड टेस्ट इज कि मतलब जिसने चीटिंग करी वो प्रोबब्ली नहीं कर पाएगा है. सो दैट वाज 40 क्वेश्चन इन 18 मिनट्स, 50 क्वेश्चन इन 18 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए. सरप्राइजिंगली
मैथ्स थी, एप्टीट्यूड थी एंड इंग्लिश थी. आई हैव एन एडवांटेज इन दैट थोड़ा सा. तो मेरा हो गया एंड दिस वाज द इजियर वन. तो ये पहले था एंड दिस वाज अनप्रॉक्टर्ड एज वेल. सो आई वोंट से पीपल यूज्ड टू यूज कैलकुलेटर. आई डिडंट. मैं नहीं बताऊंगा बट हाँ, देख लो. हाँ. सो मतलब ये ऐसे ही चलता, काफी हो गया था, काफी लोगों का हो जाता है. दे गेव मतलब मल्टीपल ट्राइज. उसके बाद इंटरव्यू. सो फर्स्ट वाज आई थिंक अ स्क्रीनिंग राउंड. स्क्रीनिंग राउंड में आई टेल यू मोर अबाउट माई प्रोजेक्ट. बट जनरली ना मतलब आई टेल यू माई स्ट्रेटेजी क्या थी. जस्ट हेल्प मी गेट थ्रू ऑल स्क्रीनिंग या स्टार्टिंग वाला फेस. स्क्रीनिंग राउंड हुआ, दे आस्क्ड माई प्रोजेक्ट, दे आस्क्ड सम बेसिक क्वेश्चन. हाँ, दे न्यू की बंदा लेजिट है. देन वेंट ऑन टू डीएसए क्वेश्चन. सो पीपल आई नो जो स्क्रीनिंग राउंड में भी रिजेक्ट हुए थे बिकॉज दे ओनली हैड डीएसए या फिर सीपी. दिस वाज पर्टिकुलरली फॉर कोऑर्डिनेशन. उसके बाद नेक्स्ट राउंड वाज आफ्टर ऑल दिस वाज डीएसए. नॉट डीएसए, आई वुड से सीपी राउंड. सो अबाउट मी, आई एम गुड एट मैथ. तो मैथ्स के मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के, कॉम्बिनेटोरिक्स के, गेम थ्योरी के क्वेश्चंस में आई एम मच मच बेटर देन लाइक प्रोबली क्लासिक सीपी या फिर लाइक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स क्वेश्चंस. सो लकीली फॉर मी, मेरे से एक मैथ का क्वेश्चन था. इट वाज समथिंग जिसका आई वुड से लाइन ऑफ कोड वाज लेस देन 30. ठीक है. सो दैट क्वेश्चन मेरे से पूछा. आई कांट रिवील द क्वेश्चन obviously, but it took time. It took one and a half hours. The guy was very interactive with me. मैं उसका भी बाद में बताऊंगा कि ये सब कैसे. Yeah. But हाँ, so like he gave me hints वगैरह, थोड़ा time लगा. We figured out and solved the question, submitted it. I was really very, I was not very sure कि फिर भी होगा ही नहीं होगा because he gave me a lot of hints, but हो गया. Next round ऐसे ही थोड़े से और rounds हुए. They were much more focused on problem solving. ठीक है. तो वो डीएसए ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे थे एंड दे वर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो आई हैड अ ड्रोन प्रोजेक्ट इन माय रिज्यूमे. सो दे आस्क्ड मी ड्रोन की ऑप्टिमाइजेशन. दे लाइक रियली वेंट रियली डीप इनटू इट Yeah. बिकॉज वो मेरा एक्चुअल था. सो आई न्यू थिंग्स अबाउट इट एंड उसके बारे में दे मेड डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस. सो दे वेंट ऑन टू माय प्रोजेक्ट. डिजास्टर मैनेजमेंट का था, ड्रोन्स का था. उसमें दे लाइक मेड की ऐसा प्लेग्राउंड है, यहाँ पे बैटरी का ही कंस्ट्रेंट है, ये ड्रोन्स है, हाउ डू यू मैप द ऑल द एरिया. फिर मैं कंस्ट्रेंट्स से डिस्कस करूँ, मैं क्रॉस क्वेश्चन करूँ. सो वहाँ पे भी काफी हुआ, ऐसे और भी चीजें हुई, और भी राउंड्स हुए. लास्ट वाज द एचआर राउंड विद द सीईओ. वो काफी लाइक वेंट स्मूथली. आस्क्ड मी स्ट्रेट अप प्रायोरिटीज, पूछी क्या क्या है. आई टेल देम फ्रैंकली, आई टोल्ड देम एवरीथिंग फ्रैंकली. And एकदम end में was the more, I would say, one of the most toughest thing was proctored aptitude round, the same round, which much more difficult questions. And again 18 40 50, मतलब 18 minutes 40 questions out of 50. So उसके लिए I practiced a lot. ठीक है. I would say कि मैं ऐसे लोग करते हैं and I would advise you to, if you get a coordination क्या कहते हैं टेस्ट और like this aptitude round, so you can get Udemy courses about them. ठीक है. Udemy courses को लेकर तुम like काफी सस्ते होते हैं, 500-600 के होंगे. You can like return them as well और ये सब कर सकते हो. और मतलब वो क्वेश्चंस दे देकर you can practice enough. या फिर उनकी क्रॉस ओवर की जो वेबसाइट है, you can make account and like practice those questions. मतलब you must have heard of it. तो I won't say it was very difficult. मतलब at the end हो गया था मेरा भी. But हाँ, so that was this. So this is the like about the coordination experience. And then I gave coordination का offer revoke हो गया था. I wanted a change or something. मन लालची है. So नहीं मानता. मन नहीं मानता. So I gave Zomato के interviews. Zomato के process was also very smooth. They focus, वो तो सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं बंदे में. They want DSA वाला पार्ट covered. System design, not system design ऐसे, but जो projects कर रखे हैं, is he very good in it? He actually did them, covered. Knows basic about web, REST APIs वगैरह वगैरह ये सब covered. And then base मतलब MySQL. I am really bad with SQL. So one thing that I did and would also tell you guys to do is, if you are bad at something, then just tell them. Tell the interview, they will understand. Be honest. Yeah, I told them directly that MySQL is not my cup of tea. If you go ahead, like want to go ahead with it, मतलब वो भी ऐसे हम कॉमन टर्म्स पे आ गए, वो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे. तो उन्होंने एक इजी सा क्वेश्चन पूछा था एंड मैंने ग्रुप बाय हैविंग बाय का क्वेश्चन पूछा था, जो थोड़ा हिंट्स के बाद मैंने कर लिया था. एंड ये थोड़ा हुआ था, मतलब एसक्यूएल वाज स्टिल वीक पार्ट में. मैंने ऑब्वियसली आई कम्युनिकेटेड. अब तुम उसमें मतलब 4 बहाने बनाओ और उसके बाद गलत जवाब दो, दैट वोंट वर्क आउट. मतलब इट वर्कड आउट फॉर मी. सो दिस वाज अबाउट जोमेटो. उसके बाद फ्लिपकार्ट, आई वुड से, हैड एन अमेजिंग प्रोसेस.
gave all the like interviews, क्या कहते हैं, they focus on DSA ज़्यादा. तो DSA के they ask I would say medium hard questions, मतलब इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछता. मीडियम हार्ड क्वेश्चन से आई हैड 2 राउंड्स, 2 या 3 क्वेश्चंस पर ईच राउंड. उसके बाद एक हायरिंग मैनेजर राउंड आज माई प्रायोरिटीज. तो हाँ, सो ये फ्लिपकार्ट के नाम है फ्लिपकार्ट. बीच में आई गिव अमेजन के इंटरव्यूज एज वेल. सो अमेजन के आई गिव ऑल द राउंड्स, क्लियर्ड ऑल द राउंड्स, क्लियर्ड द लाइक वो सारे जो भी होता है. बट अमेजन स्टॉप्ड हायरिंग, देयर इज दैट एज वेल. So this was my interview experiences about all the companies that I gave. So yeah. So all these companies that Bhavya has mentioned that he has cracked, not only he has cracked them in a time of recession, but he has cracked them off campus without the help of his college, even though he was in a good college. So there's a story about it actually. So we are telling that. Yeah, we're telling that story. So let's hear the story of how he got banned from on-campus placement. So Bhavya. Yeah, I'll keep it quick. So there's a funny incident that happened. So my first company was Texas Instruments. So मेरे को 2 महीने की इंटर्न मिली. एंड मतलब ऑनेस्टली अब टेक्सास की मैं बुराई नहीं कर रहा, बट आई थॉट कि मेरे को कुछ बेटर मिल सकता है. सो मैंने ना आई वुड बी फ्रैंक, मैंने टेक्सास के इंटरव्यूज थ्रो करे थे. मतलब मैं चुप हो गया था, आंसर्स नहीं दिए थे. बट मेरा हो गया. ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते. एंड टेक्सास इज अ रियली गुड कंपनी, मैं मना नहीं कर रहा. पर क्या कहते हैं, एंड देन उसके बाद गोल्डमैन की अपॉर्चुनिटी आई. सो अब ये था कि इफ आई से नो टू टेक्सास, जो कि बोलना पड़ा था, तो आई कांट मतलब गो ऑन, मतलब आई कांट सेट इन प्लेसमेंट्स. ये कॉलेज ने स्ट्रिक्टली बोल दिया. तो मैंने काफ़ी लड़ा, काफ़ी जुगाड़ लगाने की ट्राई करे. अब बहुत मेजअप था अगेन, क्योंकि अगर गोल्डमैन सैक्स से पीपीओ नहीं मिलता बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, मैं ऑन प्लेसमेंट ऑन कैंपस नहीं बैठ सकता था. बट अगेन इट वाज अ कैलकुलेटेड रिस्क. मेरे को लगा था मैं ऑफ कैंपस भी कुछ निकाल ही लूंगा. तो क्या कहते हैं, मतलब आई वेंट अहेड विद गोल्डमैन सैक्स. सो देयर इज दैट. काफी फनी चीजें हुई उसके बाद, काफी पॉलिटिक्स हुई. आई ट्राइड अ लॉट कि मेरे को बस प्लेसमेंट्स में बैठने दे, बट डिडंट वर्क आउट. Right. Yeah. All's well in the end, right? And one thing that he is mentioning, right, ki you should always, so there's nothing wrong in that, you know, if you know what you're worth, right, if you know that you can get something better than that, then you can go ahead and try it out. It's not, there's nothing wrong in that. If you want to try, you should try for the best that you can get, you know, you should prepare for that also, and then you should try for that. So Bhavya, you have told about so many companies, you know, how you gave the interview of so many companies. What about your preparation strategies? Like क्या prepare किया था आपने, कैसे किया था कि इतनी सारी companies को आप crack कर पाए smoothly इतना? So tell more about that. Actually tell a lot of my juniors मेरा क्या क्या रहा और कैसा अच्छा रहा. So I'll tell you one thing starting में, and I would उसके आगे का मैं बता दूँ. So एक चीज़ याद रखना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी Correct. एनी डे. ठीक है. सो यू वुड सरप्राइज अगर मेरी प्रोफाइल कभी खुलते हो ना, द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव डन. ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करे, बट आई वुड स्टिल से मेरे डीएसए तो एटलीस्ट इतना ग्रास्प पे है ऑन माय फिंगर टिप्स. एंड मैं उसके रीजंस बताता हूँ क्यों क्यों हुआ. मतलब एंड एक फिर हम एक प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट यू गाइस कैन डू. ठीक है. तो मेरे लिए इट वर्कड आउट वाज कि मेरे आई हैड अ रियली गुड फ्रेंड ग्रुप. पार्ट 1. ठीक है. पार्ट 1 इज हैव एन अमेजिंग फ्रेंड ग्रुप. फाइंड रियली रियली गुड, मतलब बैच के मेरे सबसे अच्छे बंदे होंगे ना, आई नो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, नॉट जस्ट फ्रॉम थापर, सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस के. सो आई हैड अ रियली गुड फ्रेंड ग्रुप जो सबको होता. तो जब तुम ऐसे ग्रुप के साथ बैठते हो ना, तुम्हारी डिस्कशन से ये होती है. ठीक है. अ वेरी वेरी गुड ग्रुप, गुड फ्रेंड ऑफ माइंड इज लाइक अ रियली रियली गुड सीपी का. मेरे को मैथ्स पसंद थी, तो यूज टू आस्क मी कि कोई मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, सीपी के क्वेश्चंस, एंड आई वाज नॉट एज गुड एज हिम, बट वो मेरे से पूछता था एंड रात भर सोचता था. एंड दिस वाज आई वाज नॉट डूइंग दिस फॉर ऐसे प्रिपरेशन के लिए, बट इस चीज ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी एनहेंस करी ना, इट वाज अनकंपेरेबल. आई विल टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है. तो मैंने डीएसए की मतलब सीपी की तैयारी, मतलब सीपी करना स्टार्ट करा है. सो सीपी वगैरह डीएसए में अ क्वेश्चन दैट यू एनकाउंटर कॉमनली इज एगर काउ, अगर पता होगा कि बाइनरी सर्च से यू फिगर आउट. आई गॉट द लॉजिक ऑफ द लाइक कि कैसे हुआ, बट आई वाज स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट कि इसको लिखूं कैसे मैं कोड इसका. और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 50 एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, ये कर रहा होगा, फिर वो कैसे होगा. भाई मैं बताता हूँ व्हाट वर्कड आउट फॉर मी. एंड उसके आगे ना मेरी लाइफ ऐसी स्मूथ हो गई. वो मेरा सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था. मेरे दोस्त ने बोला कि आप मेरे साथ बैठ, मैं तू मेरे को बता क्या दिक्कत होगी. मेरे साथ बैठा. वो लाइन होती है ना, लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, या उस बाइनरी सर्च में. सो मैं कभी ना उसको छोड़ देता कि वाइल कंडीशन बाद में सोचूंगा, फिर रन करता हुआ ट्राई करता रहूंगा कि मेरे को क्या डालना चाहिए. ऐसा नहीं करते. ठीक है. व्हेन यू आर दैट पॉइंट ना, जब तुम्हें उस कोड का सोचना है,
अपना दिमाग जितना यूज कर सकते हो ना, उस क्वेश्चन में इतना डीप डाइव कर लो ना टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, Yeah. कि भाई ये क्वेश्चन होगा कैसे, एंड उस क्वेश्चन का बेसिक करो. व्हाट मैं कहता हूँ कि सिर्फ लीड कोड के 150 क्वेश्चन करो. वी आर स्ट्राइवर की शीट और ये सब शीट्स है, ये शीट्स करो और इतनी डेप्थ में करो ना, अंडरस्टैंड ईच पॉइंट ऑफ दैम. ऑनेस्टली डीएसए इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. ठीक है, इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए मुश्किल नहीं है. बस हमारी प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी जो होती है ना कि 800 लीड कोड के क्वेश्चन करते रहेंगे डेली, मतलब हाँ डेली चैलेंज करना इज गुड, बट वो कॉन्सेप्ट को 10-10 बार रिवाइज करेंगे. लिटरली मिनिमम टाइम में करने का बेस्ट तरीका है. डजंट सीम लाइक कि एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम दो. ठीक है, लोग मना करते हैं कि एक क्वेश्चन पे 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना. आई वुड से दो. ठीक है, मतलब अगेंस्ट स्टैंडर्ड एडवाइस, बट मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ. ठीक है, सो दिस वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी. ठीक है, मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस करता था और बहुत सोच के करता था. तो वो ऐसा होता था कि मैंने बीएफएस के 4 या 5 क्वेश्चन कर लिए ना, तो मैं मोस्टली बीएफएस के सारे हार्ड क्वेश्चंस कर ही लूंगा. और कोड लिखना मेरे लिए आसान होता था कि कोड की एक एक लाइन लिखते वक्त ना आई वाज रियली फोकस्ड कि ये लाइन क्यों आ रही है यहाँ, और यहाँ लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं और लेस देन क्यों है. बस या फिर ऐसी चीज है. मतलब Yeah. आज भी मैं अपने दोस्तों को लीड कोड का क्वेश्चन देख करते हुए देखता हूँ ना, तो करते हैं गलत हुआ फिर से सबमिट करते हैं, फिर से सबमिट करते हैं, टेस्ट रन करते हैं, ये करते हैं. मैं कह रहा हूँ तुम रन ही मत करो जब तक तुम फिगर आउट नहीं, तुम श्योर नहीं हो कि ये पक्का ठीक है. ठीक है, मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. सिर्फ कोड तभी रन करना जब तुम पक्का श्योर हो. मतलब सीपी का इज नोज दिस, क्योंकि Yeah, वो yeah. मतलब एक्सेप्टेड और डब्ल्यू का दिक्कत है, वो होता है तो पेनल्टी हो penalty जाएगी, हो जाती पेनल्टी है. मिल जाएगी. Yeah. बट अगेन डीएसए के लिए बेस्ट चीज ये है, डोंट सबमिट द, बिकॉज ये चीज एक्चुअली तुम्हारी ग्रोथ करती है. 800 क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये करेगा. ठीक है, सो आई वुड से ये तो मेरी मतलब आई केम आउट टू टिप्स, बट ये प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी मेन थी. उसके बाद मतलब मेरे लिए दिस वर्कड आउट रियली वेल. उसके बाद और भी चीज है आई वुड. Yeah, so more on the point that he spoke, right, about having a good friends group. So that's very important. Let me tell about his friend group. So most of the people in college, they drink, they have fun, and these guys do that too. But when they sit, they're like talking about problems, CB के question discuss कर रहे हैं, lead के question discuss कर रहे हैं. तो एक problem solving level, you're not doing it just for the sake of it. एक enjoyment आता है, you try to enjoy it more, right? And the second point that he told, right, about that quality over quantity and giving more time to one problem, like I used to do that too. So I'll tell you about long challenges. I don't know if a lot of people did long challenges. So it was like you'll get 5 6 problems and you'll get 10 days for that. So entire 10 days you're thinking day and night about the same problem. Although people say not to do that, people say आधा घंटा नहीं हो रहा है छोड़ दो, editorial देख लो, है ना. But it doesn't work like that always. Sometimes you really have to get into the problem, right? And अगर वैसे करके आप एक प्रॉब्लम कर लोगे ना, बाइनरी सर्च का, डीएफएस का, लाइक यू सेड, तो बाकी कोई भी प्रॉब्लम तुम कर लोगे, है ना. एक ढंग से कर लिया, 5 ढंग से कर लिए, वैसे 50 आप आराम से कर लोगे, राइट. You don't need to solve 100 DB problem, 100 DFS problems for that. Yeah. So Bhavi, tell me more about your development strategy. Like, what did you do for development? Like, DSA CP लोग करते हैं, everyone knows DSA करना है, CP करना है. What did you do for development? Like, आपके projects कैसे थे resume में, CV में? सो अगेन आई वुड से आई वाज ब्लेस्ड विद अ गुड फ्रेंड ग्रुप. सो मैंने कॉलेज के स्टार्टिंग से ना काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे. इन फर्स्ट ईयर ओनली आई वेंट ऑन अ हैकाथॉन, जिसमें मतलब एक ड्रोन का डिजास्टर मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था. वाज वेरी स्मूथ. उसके बाद आई नेवर डिड दिस प्रोजेक्ट कि कहते हैं रिज्यूमे में कोई प्रोजेक्ट डालने के लिए चाहिए. मेरे को तो मन करा था इसलिए बनाया था, मेरे को तो पता भी नहीं था रिज्यूमे में डालने होते हैं. एग्जैक्टली. सो एक प्रोजेक्ट ना मैंने अपने लिए बनाया था. इट वॉज बेसिकली अ साइफर सॉल्विंग प्रोजेक्ट, कि कोई भी साइफर डालो उनको सॉल्व कर देता है. सो आई यूज्ड टू डू क्रिप्टिक हंट्स और ये सब CTFs. हाँ एग्जैक्टली. तो उनमें साइफर्स होते हैं. सो मेरी साइफर स्किल्स वाज गुड, तो आई मेड अ प्रोजेक्ट आउट ऑफ दैट. अब आई वुड से एंड आई विल टेल यू अ टिप एज वेल कि ना एक चीज इसने काफी एनहांस कर दिया था ना पूरा सिचुएशन, वाज माय प्रोजेक्ट. ठीक है, तो आई टेल यू कि वो प्रोजेक्ट मैंने खुद के लिए बनाया था. एंड ना प्लीज, अब प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ना एक चीज अलग करना कि मेक अ डिफरेंट प्रोजेक्ट. ठीक है, इट रियली स्टैंड्स आउट. वो Something unique. एग्जैक्टली. कोई इंटरव्यू दे रहा होता है ना, 50 लोगों ने सेम चीज लिखी होती है. मशीन लर्निंग स्टॉक प्राइस प्रेडिक्टर प्रोजेक्ट बना रखा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है, सबने कर रखा होता है. मेक समथिंग डिफरेंट दैट इज फॉर योर ओन. एंड मेरे लिए काफी हेल्प करा. आई मेड इट फॉर माई ओन. मेरे इंटरव्यू की स्टार्टिंग लाइन होती थी, आई एम भव्य खंडेल वगैरह वगैरह. एंड में बोलता था मैं कि आई हैव मेड सम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल, दे आर डिप्लॉयड, इफ यू वांट आई कैन शो इट टू देम. 7 out of 10 इंटरव्यूज बोलते थे कि हाँ दिखाओ यार क्या बनाया तुमने. ठीक है, दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, तो क्यों आगे लगे.
मैं उस पूरे प्रोजेक्ट पे ना उनको घुमा देता था, उनको डेप्थ में चले जाता और उनको समझा देता था। तो इन ईच ऑफ माई कोऑर्डिनेशन इंटरव्यू, इन लाइक वन ऑफ माई जोमेटो इंटरव्यूज एंड बाकी सारे इंटरव्यूज में ना ऑलमोस्ट मेरे से पूछते थे उसके बारे में क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें ऑथेंटिकेशन का कुछ था, जेडब्ल्यूटी टोकन का पूछ लेते। मैं इतना फेमिलियर हो गया था ना प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी क्वेश्चन यू थ्रो एट मी मैं आंसर कर दूंगा। दैट रियली रियली हेल्प मी। सो इन दैट 5 मिनट्स ना आई बिल्ड दैट रेपुटेशन कि हाँ इसको कुछ आता है। तो ये है, सो डेवलपमेंट के लिए आई मेड दोस प्रोजेक्ट्स। व्हाट आई वुड एडवाइस यू गाइस टू, कि एक प्रोजेक्ट बनाओ, थोड़ा अलग हो सके और थोड़ा एक्चुअल जो कुछ सॉल्व कर सके वो बनाओ। चाहे गिटहब से निकाल लो आधी चीजें उसकी, बट तुम्हें उस प्रोजेक्ट की नॉलेज हो, एंड डिप्लॉय इट, ठीक है। डिप्लॉय करो और शुरू के 5 मिनट के इंटरव्यू में देख बोलो कि मैंने डिप्लॉय कर रखा है, आप देखो उसको एक बार, ठीक है। चाहे वो थोड़ा शिट भी हो, दे डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम फ्रेशर, बट उससे पता लग जाएगा कि तुम जेन्युइन है। सो मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए दैट हेल्प मी अलॉट। So, any more tips you have for the students watching this, apart from the technical things? What about non-technical things? Any more tips you have for that? Because you've given so many interviews, right? What tips would you bestow upon the students? तो वन थिंग दैट आई से अ लॉट ना, किसी भी जूनियर को मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि ना इंटरव्यू में घुसो और ऐसे स्माइल करने लग जाओ, ठीक है। Yeah. इट वर्क्स लाइक अ चार्म। मैंने अपने पहले दूसरे इंटरव्यू दिए थे ना, तो मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर ऐसे स्टिकर लगा देता हूँ स्माइली, ताकि आई रिमेंबर कि मेरे को स्माइल करना है। तो मैं ऐसे स्माइल करता रहोगे, बेचारा आसान क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे। Positive vibes. एक पॉजिटिव वाइब एटमॉस्फेयर तुम क्रिएट करोगे ना, एक मैनेजर भी चाहेगा कि तुम हाँ तुम उसकी टीम में हो। सो ये तो मस्ट है, ठीक है। याद रखो, अगर तुम ऐसे सीरियस बैठ गए ना कि आता है मेरे को नहीं आता, मतलब इट्स डिफिकल्ट, बट हाँ ट्राई टू डू दैट। सेकेंड थिंग ना, जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ, इज कम्युनिकेशन इज द की। मतलब हर जगह सुना है, बट इट्स एक्चुअली द की। तुम्हें ना एक ऐसी वाइब रखनी है, मैंने ना कहीं बुक में पढ़ा था, 2-3 चीजें पढ़ी है कि इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू लायर्स। Yeah. I've heard that. Yes. या सो फर्स्ट थिंग दैट। दूसरा जो मैंने पूछा ना, कि तुम्हें इंटरव्यू में ऐसी वाइब बनानी है प्रोफेशनली कि उस बंदे को तुम्हारे साथ बैठ के दारू पीने का मन करे। Yeah, एक वैसी वाली फील हो, एक कंपेनियन वाली, एग्जैक्टली कि हाँ, कि मतलब एक यू हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम, Yeah. बट ही इज अ वेरी नाइस गाय, ठीक है। मेरे इंटरव्यू के स्टार्टिंग के 5 मिनट में ना मेरा बस यही टास्क होता था, टेक्निकल स्किल्स तो रखनी है, इतना प्यार से बात करना, इतना रिस्पेक्ट से बात करना, इतना फ्लुएंटली बात करना है, इतना स्माइल करके बात करना है ना, कि उस 5 मिनट ना विल डिसाइड योर एंटायर इंटरव्यू, ठीक है। उस 5 मिनट में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करो कि इंटरव्यूअर ही चाहे कि मैं इसको आसान क्वेश्चन दूं, और इंटरव्यूअर ही तुम्हारी हेल्प करे। दैट्स व्हाई मैं पहले बताया था ना कि द थिंग दैट वर्कड आउट वेरी वेल फॉर मी ना, कि शायद सारे इंटरव्यूज मेरी हेल्प करने के लिए काफी विलिंग हो जाते थे, क्योंकि मैं एक बहुत हंसी मजाक करने लग जाता था। मतलब काफी कैजुअली ऐसे क्रिकेट की बातें हो रही है, कई बार F1 की बातें हो रही है कि साला वर्स्टैपन तो सारी रेस जीत रहा है, कुछ भी हो रहा है, एंड दिस इज द वाइब दैट यू क्रिएट विद द इंटरव्यूअर कि हाँ भाई ये ले ले। सो मेरे लिए तो मतलब इवन टेक्निकल तुम थोड़े से कम हो जाओ, अगर ये चीज हो ना, यू कैन क्रॉस एनी बॉर्डर। मतलब जो मेन हर्डल्स होते हैं ना, वो नीचे हो जाता है तुम्हारे लिए। Like one more thing that this does, right? If you're smiling a lot, if you're doing fun, तो एक confidence आ जाता है, right? If you're anxious, if you're stressed out, तो जो आता होगा वो भी तुम नहीं कर पाओगे, है ना? अगर अच्छा वाइब करोगे, if you're smiling, if you're confident, तो you'll better performing. And at the end of the day, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, he's also a human being, ठीक है? तो he will help you out. अगर उसको चाहिए कि तुम कंपनी में आओ, he can see something good in you, तो he'll do his best to help you कि तुम आओ उसकी कंपनी में. He'll give you hints, he'll see your thought process, तुम्हें और encourage करेगा. He'll be interested in taking the interview of you. Right. So, Bhavya, imagine someone is watching this interview. They're in third year, fourth year, second year. They want to crack a good company as yours. They're worried about कि recession चल रहा है, ये चल रहा है, and they want to crack a good product-based company, good high-paying company. What advice would you give to a student watching this and have that in mind? एक चीज मैं प्राइमरीली बोलूंगा कि यू फोकस, मतलब एक्चुअली फोकस करो। कॉलेज में मजे करने जरूरी है, ठीक है, वो तो हटाना मत, बट एक्चुअली पढ़ाई करो। द फ्यू थिंग्स जो मैं पूरी, मतलब अभी तक हमारी बात हुई उसमें मैं समराइज करना चाहूंगा इसकी, यू क्रिएट अ गुड फ्रेंड ग्रुप। फर्स्ट थिंग, फाइंड पीपल। कॉलेज में सोसाइटी होती है, चाहे सोसाइटी मत ज्वाइन करो, बट सोसाइटी के सारे सीनियर से दोस्ती कर लो, या फिर सोसाइटी के सारे उन बंदों से दोस्ती कर लो जो अच्छे हैं, अगर तुम अच्छे होना चाहते हो, ठीक है। जब तुम सारे क्वेश्चन डिस्कस करोगे ना, तभी वो इन्वायरमेंट बन पाएगा, कुछ कर पाओगे। फर्स्ट थिंग, ठीक है, स्मार्ट लोगों के साथ इन्वायरमेंट बना लो कॉलेज में, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं। सेकेंड इज अगेन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, वो चीज़ तो है ही। उसके बाद बी इन कनेक्ट विद सीनियर्स, ठीक है, लोगों से नेटवर्क करना जरूरी है। नेटवर्क इज योर नेटवर्क, ठीक है, ये चीज तो हेल्प करते हैं, बट डीएसए प्रिपरेशन और ये सब तो इट्स द
वन ऑफ द मेन स्टेप, ठीक है, मतलब अगर आप टेक्निकल इंटरव्यूज दे रहे हो और ये सब कर रहे हो, सो कीप अ प्लान इन योर हेड, अगेन फोकस ऑन क्वालिटी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है कि वो सैक्रिफाइसिंग कि क्लास नहीं जा रहा है मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ या फिर ऐसे कुछ कर रहे हो, बट इतना देना है कि यू मेक वर्थ आउट ऑफ इट। दिन का एक क्वेश्चन भी ना, अगर सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दो ना, मोर देन इनफ है, अगर क्वालिटी से कर रहे हो तो। इवन हफ्ते का एक सेकंड ईयर में मोर देन इनफ है, अगर बहुत अच्छे से कर रहे हो, आई वुड से दैट। बट उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात करना, एंड अगेन ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरे को ये लगता है काफी जरूरी है, बट अगेन दीज थिंग्स हेल्प यू लॉट इन लाइफ। तुम अच्छे इंजीनियर बन के ज्वाइन कर लोगे, बट द थिंग दैट विल टेक यू अप इन लाइफ इज प्रोबब्ली द कम्युनिकेशन स्किल्स। So, like what he said, these things are a must. Quality over quantity, communication skill. Make sure that what he said, you follow that, and you actually go through with it, because you have here an expert who has done the deed before you, right? So you can take from his experience, you can take from his learnings, and you can put that into your own learnings. So thanks a lot, Bhavya, for coming on my channel. This is the first in-person interview on my channel that I'm having. Bhavya is a really fun guy to interact with. It was really fun having you here. So thanks, Bhavya. Thank you, mate. Had a nice time, and prepare, Like, guys. share, subscribe. Like, share, and subscribe. Yeah. Okay. Bye.